Hello everyone, welcome to part 2 of Poverty, chapter 4 of Indian Economic Development, class 12 Economics. Well, continuing with this chapter, the point that we were discussing was how are poor people identified. So we discussed how Dadabhai Naoroji had come up with a jail cost of living, and different study groups and different expert groups had come up with their own trials of identifying the poor. So, continuing with this topic, what we need to know is what is a poverty line. So, poverty line, you must know the definition because it's an important one marker. So, what's a poverty line? Poverty line is a line that differentiates the poor from the non-poor. So, a line that differentiates or divides, as you may say, the poor from the non-poor. As you may notice in your CBSE NCERT book for Indian Economic Development, there is a poverty line that is given on the page number 63. So what you see there is that the line goes from absolute poor and then very poor and then poor, and then there is a poverty line which divides it from the not so poor, middle class, upper middle class, the rich, the very rich, millionaires, and then billionaires. So this poverty line, this line marked here is the one which divides the poor from the non-poor. So which makes us talk about categorizing the poor. Categorizing the poor. So first of all, coming to chronic poor, I'll teach you a bit different from the book. The book की content है, but I'll make it easier for you. So the point here, just a second. Yeah, so the point here is that chronic poor is the first kind of poor, in which we have the always poor and the usually poor. अब always poor का मतलब तो आप समझ रही होंगे कि they are perpetually poor, मतलब they are mostly poor. So their graph is something like, if the poverty line is this, their graph is always below the poverty line. When it comes to usually poor, their graph is normally below the poverty line, but sometimes it goes up the poverty line. So that is why it is usually poor. So this is what together are known as chronic poor, and the examples given here are always and usually. The example is casual workers. I mean, they usually poor, always poor, but then sometimes they have a good patch of luck and they come above the poverty line, but then they go back. So these are the casual workers. Second subtopic we have is transient poor. Now in transient poor we also have two categories. First we have churning, and the second is occasionally. Now guys, please notice that the churning poor is really important because it comes as a one marker. Who are the poor that move regularly in and out of poverty. So their graph is something like this. They move regularly in and out of poverty. They are moving above the poverty line here, but then they are below, and they are above and then below. So these are known as the churning poor, and it comes normally that who are the people who move regularly in and out of poverty, and the answer is churning poor. And the example for which is small farmers and seasonal workers. Coming to occasionally poor are the ones who are mostly above the poverty line. This is poverty line, so they are mostly above. And then sometimes they may have a bad patch of luck, and then they come up again above. So this is occasionally poor. And coming to the third category, which is the never poor. These are the billionaires and the millionaires. There's no scope that they're going to be poor. So that is why their graph is, if this is a poverty line, their graph is something like this. There's no point that they're coming below the poverty line. That is why they're never poor, or you may also call them as non-poor. So this is what is categorizing poverty. Now talking about the poverty line, I've already told you this before, that the poverty line is the one which differentiates the poor from the non-poor. But in India, we have classified poverty line on the basis of MPCE. Now you will be thinking, what is MPCE? MPCE is monthly per capita expenditure. अभी monthly per capita expenditure का ये मतलब है
कि हम ये देखते हैं कि एक बंदा कितना पैसा लगा रहा है अपना खाना खाने के लिए, राइट. सो द मिनेटरी वैल्यू ऑफ द फूड, of the calorie intake, food on the basis of the calorie na. So monetary value of the minimum calorie intake decides what the poverty line is. कि मतलब अगर हमें 2400 कैलोरीज चाहिए ही चाहिए तो दिस इज़ वॉट, अगर हम 2400 से कम खा रहे हैं बिकॉज हम पुअर हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम पुअर में आए हैं. पर अगर हम अफोर्ड कर पा रहे हैं 2400 कैलोरीज से ऊपर, देन हम नॉन पुअर में आएंगे एंड वील बी अबव द पॉवर्टी लाइन. सो टॉकिंग अबाउट दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन मार्कर दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर कि रूरल पर्सन के लिए कितनी कैलोरीज मिनिमम बोलते हैं ये लोग, 2400. अर्बन के लिए कितने बोलते हैं, 2100. पर इन कैलोरीज़ को पैसा में देखा जाए तो एक रूरल पुअर के पास रुपीज़ 816 से कम पैसा होता है और एक अर्बन के पास रुपीज़ 1000 से कम पैसा होता है. अगर 816 से ज़्यादा होगा मतलब रूरल वाला बंदा पुअर नहीं है, और अगर अर्बन में 1000 रुपीज़ से ज़्यादा होंगे तो वो अर्बन वाला बंदा पुअर नहीं है. सो बट द क्वेश्चन हियर इज़ कि रूरल में जब कैलोरीज ज़्यादा हैं तो इसका पैसा ज़्यादा क्यों नहीं है. इट्स अ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट दैट वी हैव हियर इज़ बिकॉज रूरल में कैलोरीज़ के इंटेक की ज़रूरत ज़्यादा है, क्योंकि they do a lot more labor work than the urban people. Rural poor are mostly indulgent work that requires a lot of labor, that requires a lot of energy, and that is why their calorie intake has to be more. But the urban people are mostly indulged in a life that is more sedentary as compared to the poor people, as compared to the rural people. So that is why urban calorie is fairly lower than the rural one. देन कमिंग टू द मनी. अब मनी रूरल में इसलिए कम है बिकॉज अर्बन में इन्फ्लेशन ज़्यादा है. अब चाहे हमें खाना सिर्फ 2100 कैलोरीज़ का खाना है, बट वो खाना इतना ज़्यादा कॉस्ट करेगा अर्बन जगह पे बिकॉज अर्बन में इन्फ्लेशन ज़्यादा है. द कमोडिटीज़ आर स्पेंट एट अ हायर कॉस्ट प्राइस. एंड वाई इज़ दैट? बिकॉज पीपल कैन अफोर्ड इट. मोस्टली इन अर्बन पीपल कैन अफोर्ड हैविंग हायर प्राइस ऑफ फूड. सो दैट इज़ वाई ₹1000 is mandatory to become a non-poor, and rupees 816 as defined for rural. This is what you need to learn. So coming to the part that the economists are not happy with this classification. So the classification that I have talked about here is something that the economists are not happy about. So here we will be discussing why they are not happy. Discussing this in points, firstly is the fact that they say कि गवर्नमेंट ने ये बोल तो दिया कि ऐसे क्लासीफाई करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस चीज़ से हम ये क्लासीफाई नहीं कर पाते कि नॉट डिफरेंशिएट, वी आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट कि हु इज़ द वेरी पुअर एंड हु इज़ जस्ट द पुअर. अब देखा जाए तो जो वेरी पुअर है उसको ज़्यादा असिस्टेंस की ज़रूरत है गवर्नमेंट से, उसको ज़्यादा सब्सिडीज़ चाहिए, उसको ज़्यादा हेल्प चाहिए, उसको ज़्यादा पैसे चाहिए बिकॉज अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है वो. एंड एज़ कम्पेयर टू द वंस हु आर पुअर, तो ये इसलिए क्रिटिसाइज़ करते हैं कि अगर एक ऐसी पॉवर्टी लाइन क्लासीफाई करी जाए जिससे हमें वेरी पुअर पता चल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि हम वेरी पुअर की कंडीशंस बेटर कर सकें. सो दैट इज़ वाई दे क्रिटिसाइज दिस होल थ्योरी ऑफ मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर. सेकेंडली इज़ व्हाट दिस से कि आप एक्सपेंडिचर ऑन फूड और सेलेक्ट आइटम्स, एक्सपेंडिचर ऑन फूड और सेलेक्ट आइटम्स के बेसिस पे डिसाइड नहीं कर सकते कि एक बंदा पुअर है कि नहीं है, या फिर उसके पास इनकम आती है कि नहीं है. वो बोलते हैं कि देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स दैट हेल्प इन डिटरमाइनिंग कि बंदे के पास कितनी इनकम और एसेट्स हैं, कि वो बंदा पुअर है कि नहीं है. सो इसमें तो क्या वो बोल रहे हैं कि तुम सिर्फ इनकम देख रहे हो और एसेट्स देख रहे हो, पर सच बात तो ये है कि अदर इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं वो एजुकेशन भी होती है, कि बंदे को अगर एजुकेशन मिल पा रही है या नहीं, हेल्थ केयर मिल रही है कि नहीं, वाटर मिल रहा है कि नहीं, सैनिटेशन मिल रही है कि नहीं, ये सारी फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आपको क्लासीफाई करना है कि एक बंदा पुअर है कि नहीं है. फोर्थ वो बोलते हैं कि कुछ सोशल फैक्टर्स हैं, और जैसे इलिटरेसी, इल हेल्थ. अगर एक बंदा इन सब से गुजर रहा है तो शायद से वो पुअर हो. तो इलिटरेसी, इल हेल्थ और लैक ऑफ और
lack of resources, a lot of discrimination. I'm so sorry, I think there's some technical issue here. Yeah. So illiteracy and ill health and lack of access to resources and lack of civil and lack of freedom भी हो, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू मेक श्योर दैट इफ़ दे आर पुअर और नॉट, कि मतलब ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब होना चाहिए. तो दैट इज़ वाई दे हैव ऑफन क्रिटिसाइज्ड कि ये जो पूरा सिस्टम ऑफ डिफाइनिंग पुअर ऑन द बेसिस ऑफ minimum calorie intake and cost price is not effective or efficient. So this is what the economists have their view. तो गवर्नमेंट ने काफ़ी फिर इसके रिस्पॉन्स में, नाउ विल सी दिस इज अ स्टोरी. सो गवर्नमेंट केम अप विद दिस पॉवर्टी लाइन विच इज़ बेस्ड ऑन मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर. तो फिर हमारे इकोनॉमिस्ट ने बोला कि नहीं, दिस इज़ नॉट गुड बिकॉज ऑफ दीज फोर रीजन्स. देन द गवर्नमेंट केम अप एंड सेड कि नहीं भाई, हमने इस पॉवर्टी लाइन को यूज़ किया और उसकी वजह से हमने पुअर को आइडेंटिफाई किया और उसकी वजह से हमने 4 चीज़ों पे वर्क कर पाए हैं, विच इज़ यू कैन लर्न एज गियर इज़ एन एक्रोनिम आई मेड. G is for high rate of growth, E is for employment in rural areas, A is for agricultural production, higher agricultural production, and R is for reform packages, economic reform packages. सो गवर्नमेंट बोलती है कि इन 4 चीज़ों को हमने इम्प्लीमेंट किया है और इससे बहुत ज़्यादा हेल्प रही है और हमने ये अपने मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर वाला मेथड लेके यूज़ करके हमने आइडेंटिफाई करी है ये सब चीज़ें और हमने काम किया है एम्प्लॉयमेंट पे, एग्रीकल्चर पे, और हमने रिफॉर्म इकोनॉमिक पैकेजेस निकाले, तो उससे बहुत हेल्प हुई और पॉवर्टी कम हो गई. सो व्हाट दे मेंट टू से वाज इन द एंड कि पॉवर्टी कम हो गई है हमारे इन सब कामों की वजह से. बट द इकोनॉमिस्ट हैड अनदर व्यू. तो फिर हमारे इकोनॉमिस्ट वापस आके बोलते कि आप गलत कह रहे हो, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल उनको लगता है कि जो जिस वे से डेटा कलेक्ट हुआ है, कि जो उन्होंने बोला ना कि पॉवर्टी कम हो गई है, ये जो डेटा उन्होंने प्रेजेंट किया है वो बहुत ही गलत तरीके से, वे ऑफ डेटा कलेक्शन हैज़ बीन रॉन्ग, इट हैज़ नॉट बीन द राइट वे. So this is wrong, way of data collection is wrong. Secondly, what they say is that items जो कंजम्पशन बास्केट में इंक्लूड हुए हैं, जिस बेसिस पे उन्होंने निकाला है ये जो मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है, तो कंजम्पशन बास्केट मतलब आइटम्स इंक्लूडेड इन कंजम्पशन बास्केट जो हैं उन्होंने गलत चूज़ किया है. मतलब जिस बेसिस पे उन्होंने ये पूरा पॉवर्टी लाइन निकाली है वो गलत निकाली है. थर्ड, वो बोलते हैं कि methodology to estimate this poor people to estimate has been wrong. The methodology has not been right. And fourthly, what they say is that जान पूछ के इन फिगर्स को वो करा गया है. These figures have been reduced. So the figures have been reduced to arrive at the lower number of poor in India. So figures have been reduced. So this is what is all about, the 4 points that we need as a response of the economist to the government's claim of decreasing poverty in India. तो यही है. और हम देखेंगे पॉवर्टी लाइन वैसे तो काफ़ी लोगों ने वर्क किया, बट ऑल्सो द अदर पीपल विच केम अप जो पॉवर्टी लाइन से सेटिस्फाइड नहीं थे और उन्होंने खुद की थ्योरीज बनाई, was Amartya Sen, who came up with the Sen index to identify the poor. Then we have poverty gap index, जिसने पुअर को आइडेंटिफाई किया, और स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप. So these are all the tools that you will be learning in higher classes. और अभी तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, just 3 lines कि इन सब ये भी एक कुछ ट्रायल फॉर्म्स थे फॉर डिटरमाइनिंग दी पॉवर्टी लाइन ऑफ इंडिया एंड द नंबर ऑफ पुअर दैट लिव इन इंडिया. नाउ कमिंग टू द फोर्थ टॉपिक वी हैव, दैट इज़ द नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया. नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया.
तब ये टॉपिक के लिए तो आई वुड सीरियसली से कि आप अपनी बुक खोल लो साथ में, बिकॉज विल बी गोइंग थ्रू अ थरो लर्निंग भी कर लेंगे साथ साथ, सो दैट बिकम्स ईजियर फॉर यू, और अभी पॉइंट सारे याद कर लेंगे। सो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, बिकॉज इट्स जस्ट अ ग्राफ, और ग्राफ में आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको बस ये पॉइंट्स मैं आपको बता दूँगी, बाकी जो डेटा होगा आपको खुद याद, डेटा आपको ग्राफ में मिल जाएगा, बट द पॉइंट्स दैट यू विल हैव टू मेंशन, कि मतलब अगर आपको एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कुछ लिखना है तो मैं आपको एक्सपेंडिचर वाला वर्ड याद करवा दूँगी। सो दिस इज़ हाउ वी गोइंग टू अप्रोच दिस टॉपिक। दिस इज़ अ ग्राफ हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ आप याद कर लो, डेफिनेशन है कि व्हाट इज़ हेड काउंट रेशियो। इम्पॉर्टेंट है, 1 मार्कर, काफ़ी बार आया हुआ है, नॉट इन प्रीवियस ईयर पेपर्स बिकॉज ऑब्वियसली वी हैव हैड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओनली वंस, दैट इज़ इन 2020, बट काफ़ी मैंने इससे प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स देखे हैं स्कूल्स के, एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव नोटिस दैट हेड काउंट रेशियो आता है काफ़ी बार, कि व्हाट इज़ हेड काउंट रेशियो। सो यू राइट द number of poor as a proportion of people below the poverty line. हेड काउंट रेशियो इज़ नथिंग बट आप उसको बस ऐसे लिखोगे कि बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग अपॉन द पॉपुलेशन, अपॉन द होल पॉपुलेशन इज़ द होल हेड काउंट रेशियो। तो एक बार वापस कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन से जो लोग होते हैं, और टू द रेशियो ऑफ द होल पॉपुलेशन इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड हेड काउंट रेशियो, और द की टर्म्स आइडेंटिफाइड हियर एज नंबर ऑफ पुअर as the proportion of the people below the poverty line. These are the 3 keywords. So talking about the graph that we have here on 67 पेज नंबर, इसके लिए आपको मेन तो बस एक चीज़ याद रखनी है, जो ऑफिशियल डेटा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक माई होल वीडियोज़ आर जस्ट फिल्ड विद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बट आई बिलीव इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल यू टीच, कि आप साथ साथ बच्चे को बता दो कि जो वो पढ़ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट द चाइल्ड टेक्स इट सीरियसली। सो कि द ऑफिशियल डेटा ऑन पॉवर्टी इज़ मेड अवेलेबल टू द पब्लिक बाय द नीति आयोग। तो आपकी बुक में लिखा हुआ है प्लानिंग कमीशन ऑफिशियल डेटा पॉवर्टी के ऊपर प्रोवाइड करती है, बट एक्चुअली में नीति आयोग करती है, बिकॉज प्लानिंग कमीशन हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। नीति आयोग इज़ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो आप ये भी याद कर लो कि व्हाट इज़ नीति आयोग। सो नीति आयोग इज़ अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ कम अप विद, it's basically an advisory body to the government, and it gives advices on the criteria for transforming India. So planning commission पहले decide करती थी वो हमारे 5-year plans and everything, but now that we have skipped our 5-year plans, we have even resolved our planning commission, और हमने नीति आयोग बना लिया है, and we don't have any 5-year plans as of now. तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज़ कि ऑफिशियल डेटा पॉवर्टी के ऊपर कौन प्रोवाइड करता है? इट इज़ नीति आयोग। बट अनदर पॉइंट दैट यू मस्ट रिमेंबर, और इसमें सब कंफ्यूज होते हैं लेजिट, कि इट इज़ एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा कलेक्टेड बाय द नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो कलेक्ट कौन करता है डेटा? प्रोवाइड ऑफिशियल डेटा तो नीति आयोग करता है, बट कौन कलेक्ट करता है? इट इज़ NSSO, विच इज़ National Sample Survey Organization. So National Sample Survey Organization is the authority which collects the data on the basis of consumption expenditure. आप ये भी याद कर सकते हो कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि हमने बात करी थी ना ऊपर, MPCE, मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वही चीज़ कि NSSO कलेक्ट करता है और नीति आयोग ऑफिशियल डेटा प्रोवाइड करता है सिटीजन्स ऑफ इंडिया को। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, काफ़ी डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों में, and don't get confused if there's a question like that. Now coming to the graph, आपको ये ग्राफ पूछा हुआ है हमारे उसमें भी, सैम्पल पेपर फॉर CBSE 2020 में भी पूछा था, एंड बहुत ही ईजी है, आपको बस कुछ नहीं करना है। आई जस्ट टेल यू द पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल दो याद रखो कि हमारे पास 2 ग्राफ्स हैं। सो फर्स्ट वी हैव अ ग्राफ ऑन पेज नंबर 67 एंड सेकेंड वी हैव अ लाइन ग्राफ ऑन 66, राइट। सो आपको इसमें पहले हम 66 वाले पेज नंबर पे देखेंगे कि आपको बस याद करना है कि एब्सोल्यूट जो पुअर हैं वो कम हो गए हैं। दिस इज़ योर फर्स्ट पॉइंट।
बट आप ये ना देख के भी लिख सकते हो ये चीज़, इवन दो आई सजेस्ट कि आप देख के ना लिखो, बिकॉज ऑब्वियसली आपके साथ टाइम नहीं होता 3 घंटे में कि आप डेटा पहले देखो और फिर लिखो. यू शुड बी रेडी बिकॉज यू जस्ट हैव 3 hours टू प्रूव योर सेल्फ ड्यूरिंग द एग्ज़ाम. सो या 320 मिलियन से हमारे 270 मिलियन हो गए हैं. देन सेकेंडली वी हैव, ये एब्सोल्यूट पुअर ही है, मतलब आपको बस ये याद करना है कि पहले हमारे 1973 में 320 मिलियन थे, अब वो 2011 में 270 मिलियन हो गए हैं. फिर सेकेंडली यही है कि जो वो है पॉवर्टी लाइन है हमारी, बिकॉज एब्सोल्यूट लोग कम हो गए हैं तो पॉवर्टी लाइन भी शिफ्ट हो गई है. इट हैज़ गॉन फ्रॉम 55% to 22%. So this is how the poverty line has shifted. Thirdly is that अभी भी हमारे, अब ये तो इसमें कोई चेंज नहीं आया है. जो रूरल पुअर है ना, वो पहले भी 3/4 थे और अब भी 3/4 हैं. सो दिस मीन्स कि हमारे सारे पॉपुलेशन में से, सारी पॉवर्टी पुअर पॉपुलेशन में से 3/4 ऑफ लोग जो है वो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं. सो एंड दिस हैज़ नॉट चेंज्ड एवर सिंस. नाउ फोर्थ यही है कि जो एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर इन रूरल एरियाज had declined whereas the number of their urban counterparts increased marginally. तो जो एब्सोल्यूट पुअर हैं रूरल एरियाज़ के, वो एक्चुअली एब्सोल्यूट पुअर ऑफ रूरल एरियाज़ हैव एक्चुअली डिक्लाइंड, वो कम हो गए हैं एज कंपेयर्ड हम इसको कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे टू दी पुअर इन अर्बन एरियाज़. ये इतने कम नहीं हुए हैं, ये अभी भी उतने ही हैं. तो ये ज़्यादा कम हुए हैं पहले से, पर ये ज़्यादा कम नहीं हुए हैं, अर्बन पुअर कम नहीं हुए हैं. फिफ्थ इज़ दैट द पॉवर्टी रेशियो जो है, आप देखोगे कि जो 66 पेज नंबर पे हमारे 2 ग्राफ्स हैं, उसमें जो सेकंड वाला है हेड काउंट रेशियो, वो कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है. सो द पॉवर्टी रेशियो द हेड काउंट रेशियो इज़ डिक्लाइनिंग कॉन्टिन्यूसली फॉर बोथ अर्बन continuously for both urban and rural areas. लेकिन बट ये भी बोलती है बुक कि तब भी चाहे डिक्लाइन भी कर रहा हो तब भी पैरामीटर्स ज़्यादा encouraging नहीं है. पैरामीटर्स आर नॉट encouraging. द रेशियो इज़ डिक्लाइनिंग मच स्लोअर देन द एब्सोल्यूट नंबर. तो वो बोल रहे हैं कि जो रेशियो है वो कम स्लो डिक्लाइन कर रहा है और एब्सोल्यूट जो रेशियो है वो स्लोअर डिक्लाइन कर रहा है और एब्सोल्यूट नंबर वाले ज़्यादा डिक्लाइन कर रहे हैं. इसका मतलब ये हुआ कि एब्सोल्यूट लोग तो कम हो रहे हैं, पर रेशियो में देखा जाए तो वो नहीं हो रहे हैं. मतलब इन दी एंड अगर हम ऊपर का टॉप व्यू लें तो लोग कम नहीं हो रहे हैं और ज़्यादा कम नहीं हो रहे हैं. इफ़ यू गेटिंग इट. सिक्स्थ पॉइंट इज़ दैट द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर इन रूरल एंड अर्बन एरियाज रिड्यूस्ड, whereas in the case of ratio the gap has remained and then widened. तो आप लेफ़्ट वालों में देखोगे तो एक्चुअली जो गैप है, गैप बिटवीन अर्बन एंड पुअर की जो एब्सोल्यूट है, सो लेफ़्ट वाला पूरा ग्राफ का एब्सोल्यूट का है और जो राइट वाला है वो रिलेटिव है. रिलेटिव मीन्स रेशियो. सो गैप बिटवीन अर्बन एंड पुअर कम हो गया है व्हेन इट कम्स टू एब्सोल्यूट, बट व्हेन इट कम्स टू द रेशियो उनका गैप पहले तो इक्वल था और फिर वो वाइडन हो गया है, ज़्यादा हो गया है. सो दिस इज़ फॉर द ग्राफ ऑन पेज नंबर 66. नाउ कमिंग टू द बार ग्राफ ऑन 67. उसमें कुछ नहीं है, वो स्टेट लेवल ट्रेंड्स डिस्कस कर रहे हैं बस. स्टेट लेवल ट्रेंड्स एंड स्टेट लेवल ट्रेंड्स पे भी यही है कि फर्स्टली आपको ये याद रखना है कि हमारी जो पॉवर्टी लाइन है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, पॉवर्टी लेवल जो है वो 55 से 22% हो गया है. 22%. जैसे द नेशनल पॉवर्टी लेवल हैज़ गॉन फ्रॉम 55% in 1973 to 22% in 2011 and 12. Then what you will say is second कि 1973 में हमारे 6 स्टेट्स थे जो बिलो पॉवर्टी लाइन थे. विल कॉल देम BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन. सो वो कौन से थे? टब, माओ. सो हियर वी हैव तमिलनाडु, वी हैव उत्तर प्रदेश, वी हैव बिहार,
we have MP, we have Orissa, and then we have West Bengal. So these are the 6 states. इनको याद कर लो बिल्कुल, बिकॉज आपको अगर थरली ये सब पता होना तो आपको टाइम नहीं लगता एग्ज़ाम में लिखने का, और इट बिकम्स ईजियर फॉर यू. सो द 6 states we have is तमिलनाडु, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, विच यू कैन लर्न एज टब माओ. एंड और इसलिए मैंने टब माओ इसलिए याद करवाया बिकॉज आपको थर्ड पॉइंट में हेल्प करेगा. आपको बताना है थर्ड पॉइंट में कि इंडियन स्टेट्स ने काफ़ी वो करी है, प्रोग्रेस करी है, और पॉवर्टी काफ़ी कम हो गई है. और आप ये भी लिखेंगे कि 4 स्टेट्स, जो बीच की 4 स्टेट्स हैं, विच आर यूपी, सॉरी माय गॉड, या सो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में अभी भी बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, बट वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु वर एबल टू टेक देयर पॉपुलेशन अबव पॉवर्टी लेवल. सो आपको बस ये याद कर रहे हैं कि जो लास्ट के 2 हैं ये ले पाते हैं, अपनी पॉवर्टी को ऊपर ले गए पॉवर्टी लाइन से, पर जो बीच की 4 हैं वो नहीं ले जा पाए, और अभी भी इनकी पोजीशन बिलो द पॉवर्टी लेवल है. दिस इज़ योर थर्ड पॉइंट, दैट्स इट. मतलब आई जस्ट राइट हियर कि 2 स्टेट्स हैं ऐसे, ये 2 जो पॉवर्टी को अपना ऊपर ले गए, मतलब पॉवर्टी कम हो गई है एंड ये लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में नहीं रहे हैं, देव गॉट अबव पॉवर्टी लाइन, APL, एंड दीज 4 स्टेट्स आर द वंस विच आर स्टिल बिलो पॉवर्टी लाइन. So this is it for this topic. We just have a few topics left now कि what causes poverty. ये भी बहुत easy है, and policies and programs ये ठीक easy है because ये important बहुत है आपके 6 markers के हिसाब से. I'll be discussing it the next videos, so stay tuned. I'll be telling all the important stuff that comes throughout the chapter. So stay with me while I teach you, and comment your feedback down, and if there's any topic that you would want me to explain in detail, or if there's any doubt, then you can surely comment below. And please like, share it with your classmates and friends and teachers and everyone around you, so that they're also able to learn properly for class 12th. And please subscribe to it, ask others to subscribe to it, because it's going to really give me the boost to make more and more of educational videos for you all. So thank you so much. Thank you.